Next, we have to read about types of chemical bond. Types of chemical bond में दो टाइप्स पढ़ेंगे हम. The first type is based on transfer of electron. This we have already read in class 10. Based on transfer of electron. So based on transfer of electron, it is called ionic bond or electrovalent bond. Ionic bond or electrovalent bond. एकदम सेम डेफिनेशन है क्लास 10 वाला. Bond formation happens due to, what's the keyword? Complete transfer of electron. Bond formation takes place through complete transfer of electron electropositive and electronegative element. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या बोला था? मेटल. और इनको क्या बुलाते हैं हम? नॉन मेटल. सो नोट कर लीजिए. आयनिक बॉन्ड so we all know what is the example. NaCl. तो NaCl जो बनता है इट इज बेसिकली Na प्लस और Cl माइनस. आपने लास्ट ईयर बहुत सारे डायग्राम्स बनाए इसके. क्वेश्चन इज व्हाई दिस हैपेंस. सोडियम 1s2 2s2 2p6 और 3s1. क्लोरीन 1s2 2p6 3s2 और 5 2 7 6 4 10 17. If it loses one electron, it will attain a noble gas configuration. If it gains that electron जो इसने lose किया, it will attain noble gas configuration. So since it has lost an electron, Na will become Na plus. Cl has gained an electron, Cl will become Cl minus. Now there will be a force of attraction between both of them. और बेटा केमिकल बॉन्ड के डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था? What is a chemical bond? It is a force of attraction. This results in formation of ionic bond. नोट कर लीजिए.
अगेन पुराने क्लासेस के नॉलेज से पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बुलाते हैं हम? कैटायन। नेगेटिव चार्ज वाले को क्या बुलाते हैं हम? Compounds having cationic and anionic species always have ionic bond. Compounds having cationic and anionic species will always have ionic bond. Compounds having cationic and anionic species will always have ionic bond. अच्छा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से आया है? चार्ज की वजह से आया ना? चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पढ़ेंगे 12 में डिटेल में, पूरा लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So this is the first way in which a bond can be formed. Okay, beta? Based on transfer of electron. This is the first way in which a bond can be formed based on transfer of electron. हमेशा bond ध्यान रखना, bond is nothing but a force of attraction. Next one. Second types of chemical bond based on sharing of electron. Based on sharing of electron. Now, based on sharing of electron, again you can have two types of sharing. Equal sharing, unequal sharing. Equal sharing and unequal sharing. When the electrons are shared equally, ये भी आपने पढ़ रखा है, it results in the formation of covalent bond. इक्वल शेयरिंग किसका? Example of this, hydrogen, which has a configuration of 1s1. Another hydrogen which has a configuration of 1s1. दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा and it forms a bond. Already read in class 10. या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, चॉइस आपकी है। अभी ये सब भी करेंगे, 10 वाली चीजें हैं बट फिर भी करेंगे। This one is new, unequal sharing of electron. It leads to the formation of कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके बारे में जिक्र किया था रिडॉक्स रिएक्शन में।
कि ऐसा होता है, अभी बस खाली लिख लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, unequal sharing of electron. So basically what happens in this? A के पास जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। बी के पास जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, उससे कम इलेक्ट्रॉन होता है। तो व्हाट हैपेंस, ए जो है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, हेंस दिस ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस बॉन्ड को हम शो कैसे करते हैं, ऐसे ही एरो बनाकर, या फिर चूंकि इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, चार्ज कैसा आएगा, +2 नहीं लिखते हैं, ठीक है। होना तो क्या चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन गया तो +2, +2 नहीं लिखते हैं। +2 अगर लिख दिया तो क्या हो जाएगा, वो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, आयंस। प्लस इसलिए दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो इसने इसको डोनेट किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो इसने इसको डोनेट किया है ये इसके शेल के पास भी है, इसलिए प्लस इसलिए दिखा रहे हैं कि वो उससे बस खाली दूर गया है, दैट्स व्हाई प्लस। और भी आएगा इसके बारे में आगे, अभी फिलहाल इतना ही। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक डोनर होगा एक एक्सेप्टर होगा, एक के पास जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उससे ज्यादा होगा तो इट विल नेट। ठीक है, पूरा केमिकल बॉन्डिंग जो है बेटा, वो कुछ थ्योरीज पर है। बहुत देर तक यही चलेगा, पूरा है नाम, फोर्स लोएस।
theory of chemical bonding. Russell-Lewis theory of chemical bonding. तो जो आपको बचपन से सिखाया जाता है ना, वो ऑक्टेट वाला, वो यही थ्योरी है. What does this theory says? Elements combine to form octet. Is this octet? 8 electrons in its outermost shell. Like the noble gases. Helium is basically what? Not octet, it's duplet. 2 electrons in outermost shell. बस खाली स्टार लगा के लिख लीजिए. Rest all the noble gases are what? Following octet rule. Okay. This is the first point in. सेकेंड चीज जो इसमें सीखनी है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 10 में. तो क्या होता है बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर? आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको आप डॉट या फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हो. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल बाय डॉट्स. जनरली डॉट से ही लिखा जाता है, तो कुछ बना लीजिए हाइड्रोजन से लेकर फ्लोरीन तक.
हो गया सारा? कुछ मैच कर लो ऑक्सीजन फ्लोरीन। आई होप आपने सारा बना लिया हुआ है। सारा octet rule. Atoms combine to have 8 electrons in their outermost shell, either by transfer of electron or by sharing of electron. कहने का मतलब है लुइस क्या बोल कर गया, आयनिक बॉन्ड हो या कोवेलेंट बॉन्ड हो, दोनों में ही ऑक्टेट रूल क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, either by transfer of electron which is called ionic or by sharing of electron, coordinate or covalent. On the basis of three things जो लुइस बोल कर गए, ठीक है, रूल और ये डॉट स्ट्रक्चर, we will be explaining or we will be reading first this ionic bond formation. फिर से NaCl वाला हम एग्जांपल लिखेंगे। तो हमने शुरू में लिखा 1s2 2s2 2p6 3s1. If it loses one electron, it becomes if it gains one electron, it becomes outermost shell को देखना बेटा है ना, outermost shell have to see for outermost shell. Already something we have noted about this. This was cation. This was anion. cation को हम और क्या बुलाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल्स। ये जो Na प्लस है पॉजिटिव चार्ज, ये जो Cl माइनस है नेगेटिव चार्ज, this both will have electrostatic force of attraction. सब वही सब है।
रिपीट हुआ है बस. And this electrostatic force of attraction will be called ionic bond. This electrostatic force of attraction will be called ionic bond. अब कुछ नया. Generally what happens, the cationic species generally हमेशा is surrounded by many anionic species. जैसे एक Na प्लस काफी सारे Cl माइनस के साथ क्या होगा, सराउंडेड. आपने तो एक ही एटम लिखा ना, तो जब हम रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसमें एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं. तो एक Na प्लस काफी सारे Cl माइनस के साथ अटैच्ड होगा. तो देखना ध्यान से, इसके साथ भी अट्रैक्शन, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, इसके साथ. तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आयनिक बॉन्ड, विल यू बी एबल टू टेल दिस? क्या डायरेक्शन बताओगे? अगर मान लो इसको उठा लिए तो क्या बोलते हैं, ईस्ट. इसको उठा लिए तो क्या बोलते हैं, वेस्ट. इसको बुलाते हैं नॉर्थ, इसको बुलाते हैं साउथ. इसको बताते तो नॉर्थ ईस्ट. देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन. ओके, दैट्स व्हाई these ionic bonds are non-directional in nature. ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मैंने बस समझाने के लिए यूज किया. ओके, लिख मत लेना बस. It is non-directional in nature. कुछ कटायंस और कुछ अनायंस के बारे में हम नोट करेंगे. मोनोएटॉमिक कटायंस एंड पॉलीएटॉमिक कटायंस. ऑलरेडी क्लास 9 वाले टेबल में आपने ये सब याद कर रखा होगा. बस उसी को कट कॉपी पेस्ट करेंगे. इसके अलावा आपको पॉलीएटॉमिक कटायंस वहां शायद नहीं था, उसको थोड़ा ऐड करो. Hg2+2, vanadium oxide plus these are called, क्लास 12 में है ये, these are called oxocations. क्लास 12 में जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे वहां पढ़ाया जाएगा. These are called oxocations. Oxo stands for oxygen and cation plus charge. ठीक है. इसके काफी सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे. अलग है.
superoxides and peroxides. देखो और भी है, आपने रीड करे ना, OH माइनस, HCO3 माइनस, ठीक है, फॉस्फेट, वो सब जानबूझकर नहीं लिखा है क्योंकि वो ऑलरेडी आपको आते हैं, ठीक है। नए नए चीजों को आप दिमाग में और एक्स्ट्रा डालो। I3 माइनस, CN माइनस, दिस इज कॉल्ड साइनाइड आयन, साइनाइड आयन, ठीक है। ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स ऑलरेडी डन। फिफ्थ, ionic compounds do not show isomerism। क्या होता था बेटा आइसोमरिज्म? सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना आइसोमरिज्म। ब्यूटेन का आइसोमर बना देते हैं हम, स्ट्रेट चेन, उसके बाद आपका ब्रांच चेन। आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो आइसोमरिज्म बट आइसोमॉर्फिज्म। देखो आइसोमरिज्म क्या था? सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। यहाँ क्या होगा? सेम स्ट्रक्चर, डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट फॉर्मूला, NaCl, KCl, है ना, NaCl और KCl, structure will be same but formula is what? Different. Isomorphism, same structure, different compounds. This one is very important. Sixth, फिर से आ गया है, formation of NaCl। अब ऐसा वाला फॉर्मेशन नहीं बनाएंगे, है ना, ये जो हमने आसान तरीके से सस्ते में निपट गए, Na plus Cl minus, now not like this। तो ये जो नमक होता है वो जनरली किस फॉर्म में होता है? सॉलिड। तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl, first of all write the chemical equation। How NaCl is formed? Step 1, sublimation of sodium solid to sodium gas। कैसे सब्लिमेशन हो गया? 9 में आपने क्या पढ़ा था? सॉलिड से गैस अगर डायरेक्टली जाता है तो इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन।
और हम सबको पता है सॉलिड से गैस अगर पहुंचाना है तो वी हैव टू ऐड एनर्जी, अपने आप थोड़ी पहुंच जाएगा। Hence, it will be a endothermic process और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो एंथैल्पी होता है दैट इज पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव। एंथैल्पी वगैरह सीखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। तो सब्लिमेशन ऑफ सोडियम सॉलिड सोडियम गैस, क्यों किया ये, व्हाई वी डिड दैट? डायरेक्ट सोडियम सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको एक चीज समझाई गई थी और वो समझाया क्या गया था, डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या था बेटा, बता सकते हो आप? व्हाट वाज डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? एक मोल गैस से एक मोल गैसियस आयंस में कन्वर्ट करना वाज व्हाट, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो गैस में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी था, ये क्लियर है आपको? अगर गैस सोडियम गैस में कन्वर्ट नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी डाला जाता है वो कौन सा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी आप यूज कर पाओगे, नहीं यूज कर पाओगे। इसीलिए गैस में कन्वर्जन करना इज व्हाट, नेसेसरी। So again, since it's a case of ionization energy, we have learned ये लिख लेना यहाँ पर इसको बैलेंस करके। सोडियम को तुमने आयन बना दिया, किसका आयन बनना बाकी है, क्लोरीन का। क्लोरीन तो खुद गैस में है, क्लोरीन को क्या बनाना है, क्लोरीन माइनस। कैसे बनेगा, रुक जाओ रुक जाओ। ये थोड़ा नोट करना होगा आपको। वो क्या, फिलहाल के लिए क्लोरीन में इस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है Cl2 में, Cl2। तो सबसे पहले हमें वो Cl2 का बॉन्ड को क्या करना होगा, तोड़ना होगा। सिखाया गया था आपको, बताओ एनर्जी ऐड होगा या लिबरेट? बॉन्ड तोड़ने के लिए, बॉन्ड जब बनता है तो स्टेबिलिटी होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, एनर्जी डालना होगा। स्टेप 4, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड?
व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, जो मैंने यहाँ पर लिखा, पढ़ा है ना आपको? बोलो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हो। अब मुझे ये बताओ, जो तुमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? ऐड एनर्जी और रिलीज एनर्जी, याद है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब आपको पढ़ाया गया था, तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेट करके पढ़ाया गया था कि इसका जस्ट उल्टा होता है। तो अगर जस्ट उल्टा होता है तो यहाँ पर एंडोथर्मिक होगा, तो वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक। एंथैल्पी चेंज विल बी नेगेटिव। स्टेप 5, तुम्हारे पास अब दोनों है ना? These will combine to form a lattice structure। ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। Hence, the energy is called lattice energy। Hence, the energy is called lattice energy। So again, this process is associated with release of energy. Enthalpy change for this process will be negative। ठीक है, तो NaCl बनाना अगर आप देखो तो 5 स्टेप का प्रोसेस था, जो हम Na प्लस और Cl माइनस डायरेक्टली लिख देते हैं। दैट इन्वॉल्व हाउ मेनी स्टेप्स? 5 स्टेप्स, जिसमें पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, यही था ना, 1 2 3। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, दिस इज एंडोथर्मिक। चौथा स्टेप एंड पांचवा स्टेप इज एक्सोथर्मिक। आप ऐसे नहीं याद रखेंगे, ठीक है? जनरली लोग ऐसे याद रखते हैं, ठीक है? आप कैसे याद रखेंगे? आप इस तरीके से, जैसे मैं लिखा हूं वैसे ही लिखना, हाफ Cl2 बॉन्ड ब्रेकिंग। इसका रीजन है,
रीजन ये है कि लैटिस एनर्जी वाला पार्ट छोड़कर स्टेप वन स्टेप टू जो आपने लिखा, ठीक है, आपने कहाँ से स्टार्ट किया? सोडियम से स्टार्ट किया। आपको क्या दिक्कत थी? आप क्लोरीन से स्टार्ट कर लेते, यहां से भी तो स्टार्ट कर सकते थे। क्लोरीन को पहले क्लोरीन माइनस बना लेते और उसके बाद सोडियम को सोडियम प्लस बनाते, तो कोई इशू तो नहीं है उसमें भी। तो इसीलिए वन टू और थ्री फोर क्या होता है, कभी कभी कहीं कहीं पर क्वेश्चंस में एक्सचेंज करके लिख देता है, और आपको क्या याद रखता है? वन टू थ्री इज एंडोथर्मिक, फोर एंड फाइव इज एक्सोथर्मिक। इसीलिए हम वैसे याद ही नहीं करेंगे। हम जब याद करेंगे तो ऐसे sublimation, ionization और bond breaking, bond enthalpy will be what? Endothermic. Electron gain enthalpy and lattice energy will be exothermic. ये सब इतना कहानी क्यों पढ़ा हम? और formation of ionic bond energy released should be more than energy given. एनर्जी रिलीज्ड को, एनर्जी रिलीज्ड को और क्या लिखता है? एनर्जी इवॉल्व। एनर्जी गिवन को और क्या लिखता है? एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। ज्यादा एनर्जी रिलीज होना चाहिए एज कंपेयर टू व्हाट यू गिव एनर्जी। ओके, नाउ आई हैव गिवन यू दिस स्टेटमेंट कि ज्यादा एनर्जी रिलीज होना चाहिए एज कंपेयर टू गिवन एनर्जी। कैन यू कमेंट NaCl का अगर आपको बनाना है? देखो ये क्वेश्चन है सोचने वाला, मैं चाहूं तो इसका आंसर लिख के दे दूं आपको, बट मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि अगर आपको NaCl सॉलिड बनाना है तो क्या ज्यादा रखना होगा, क्या कम? कैन यू टेल मी? कौन सा स्टेप ज्यादा होना चाहिए, कौन सा स्टेप कम होना चाहिए एनर्जी वाइज? हो रहा ऊपर में, इसको सोचकर। अगर तुम्हें आयनिक कंपाउंड बनाना है, आयनिक कंपाउंड का क्राइटेरिया वहां लिख के दे दिया कि एनर्जी रिलीज ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू एनर्जी गिवन, so what all you can think कि एनर्जी रिलीज ज्यादा कैसे होगा? ज्यादा सोचने का तो जरूरत है नहीं कि एनर्जी रिलीज ज्यादा कैसे होगा। जब ये दोनों क्या होंगे, बड़े या छोटे? हाई वैल्यूज। और इधर वाले क्या होने चाहिए? लो वैल्यूज। बस यही है। therefore we can write for formation of ionic bond, जनरली हम केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो ये आयनाइजेशन, सब्लिमेशन, बॉन्डिंग में ये हमारे काम का होता है, ये हमारे काम का होता है और ये हमारे काम का होता है। बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या होना चाहिए? हाई। इसके बाद लैटिस एनर्जी ये क्या होना चाहिए? हाई। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? कम। तभी आयनिक बॉन्ड बन पाएगा। बट आप क्या करना, बुक में इतना ही लिखा होता है बेटा, बट आप क्या करना ना,
यहां पर नोट करके एक पॉइंट चिपकाना, सब्लिमेशन भी कम होना चाहिए और बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी भी कम होना चाहिए। तो जिस भी कंपाउंड में इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होगा, वो कंपाउंड कैसा कंपाउंड बनाएगा? आयनिक। ठीक है। अब एक सवाल कैलकुलेशन का भी आता है इसमें। कैसा सवाल आता है वो देख लो। आपको इन पांचों का वैल्यू दे रखा होगा, पांचों का, और आपसे पूछेगा कि NaCl जब बनेगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा ये बताओ। NaCl जब बने, NaCl का ही सवाल पूछता है। NaCl अगर बनेगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लो एक बार। NaCl हो या इसके बाद कोई सा भी कंपाउंड आपके पास आ जाए, तो जितना कहानी हमने 5 स्टेप में लिखा उसको एक एरो डायग्राम से हम बना लेंगे। Na सॉलिड से Na गैस, Na गैस से Na प्लस गैस, हाफ Cl2 गैस से Cl गैस, Cl गैस से Cl माइनस गैस, और फिर इन दोनों जोड़कर NaCl। ये रहा तुम्हारा सब्लिमेशन एनर्जी, ये रहा तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी, ये रहा तुम्हारा बॉन्ड ब्रेकिंग वाला बॉन्ड एनर्जी, और ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऊपर की तरफ एरो बनाया क्योंकि एनर्जी रिलीज, ऐसे ही समझने के लिए। दिस इज लैटिस एनर्जी, एनर्जी रिलीज। ठीक है। तो NaCl के फॉर्मेशन में अगर मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे और ये दे दे, क्या साइन के साथ सब जोड़कर हम बता सकते हैं? से फॉर एग्जांपल दिस इज +50, या +50 छोड़ो, बस 50 लिखा हुआ है। बोलेगा सब्लिमेशन एनर्जी इज 50 जूल, तो आप क्या लोगे उसको? हाउ मच? +50। आयनाइजेशन एनर्जी बोलेगा 100 जूल, क्या लोगे आप उसको? क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी बोलेगा से फॉर एग्जांपल 80 जूल, क्या लोगे? यही गलत होगा। क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी बोलेगा 80 जूल, तो क्या लोगे? दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? +80। बट गलती क्या होगी कि आपको ये वाला जो वैल्यू हो सकता दिया जाता है, ये वाला वैल्यू जो दिया जाता है, ये पर मोल बेसिस पर दिया जाता है, पर मोल बेसिस पर दिया जाता है। यहाँ कितना मोल है? 80/2 कितना होगा आंसर? 42। यही गड़बड़ होगा और कुछ गड़बड़ नहीं होता। नोट कर लो। इसका मान लो वैल्यू दे रखा है 60, ठीक है, या -100, या मान लो इसका वैल्यू दे रखा है 150, क्या लिखोगे? -150। इसका वैल्यू से फॉर एग्जांपल दे रखा है 300, तो यहाँ क्या लिखोगे? -3। सबको जोड़ दोगे, और अगर नेगेटिव आया तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। नेगेटिव का क्या मतलब है? एनर्जी इवॉल्व होना। और अगर नेगेटिव नहीं आया तो आयनिक बॉन्ड पॉसिबल हो सकता है ना। कल को आपको NaCl के जगह कोई और हाइपोथेटिकल कंपाउंड दे दे, इसके पांचों एनर्जीज लिख कर दे दे आपको, और पूछे कि ये बनेगा कि नहीं आयनिक, बता देंगे आप। क्राइटेरिया इज पर जो लिखा, सारे एनर्जी को ऐड करो और देखो कि एनर्जी इवॉल्व हो रहा है या एनर्जी एब्सॉर्ब।
फाइनल आंसर माइनस में आना चाहिए। माइनस मीन्स एनर्जी इज रिलीज्ड। बस बॉन्ड वाले का ध्यान रखना। जनरली जो दे रखा होता है जूल पर मोल, यहाँ तो हाफ मोल है, हाफ मोल से एक मोल बन रहा है तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है और मेरे हिसाब से ट्यूटोरियल शीट में भी होगा ये क्वेश्चन। बन जाएगा हम सबसे। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। लिखो, देने वाला है। जनरली सॉलिड। यील्डिंग पॉइंट बताओ क्या होता था? हाई या लो? हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये याद है आपको? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये लाइन याद है आपको एनसीईआरटी की? याद है तो पूरा सही सही कंप्लीट करके लिख सकते हैं आप। इसके आगे क्या था? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑलवेज। इज इट ऑलवेज? हो। आइदर इन मोल्टेन फॉर्म और इन एक्वस फॉर्म। एनसीईआरटी लिखा ये चीज। मोल्टेन फॉर्म का क्या मतलब हुआ बेटा? पिघला हुआ। पिघला हुआ हिंदी में लिख लो बगल में, क्योंकि इसका बड़ा डेंजरस वाला क्वेश्चन था जो आप लोगों को आया नहीं बोर्ड में। मोल्टेन NaCl में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा, और एक्वस वाले में पास करोगे तो क्या होगा? पढ़ा आपने ये? मोल्टेन वाला कहाँ पढ़ा? मोल्टेन वाला कहाँ पढ़ा? और एक्वस वाला कहाँ पढ़ा? दोनों अलग अलग था, आया नहीं, बच गए। एक्वस वाला यू रेड इन ब्राइन, ठीक है, सोडा लाइम प्रोसेस, सॉरी क्लोरल प्रोसेस। मोल्टेन वाला कहाँ पढ़ा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में आपको कैथोड एनोड पर मेटल मिल जाता था, जबकि यहाँ पर क्या मिलता था एक्वस NaCl पर? क्लोरीन गैस और दूसरे साइड हाइड्रोजन गैस। उधर हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता था मोल्टेन वाले में, वहां वाटर, ऑक्सीजन। अपना है ये इसका दुनिया मोल्टेन और एक्वस का, बट ठीक है आप लिख लेना पिघला हुआ। एक्वस का मतलब लिख लो व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा। दैट्स वाई थोड़ा टाइम दे रहा हमने मोल्टेन और एक्वस पर, इंपॉर्टेंट है वो। और soluble in water। अब एक चीज रटेंगे पहले तो हम, ये भी सिखाया जाएगा। आयनिक कंपाउंड आर पोलर इन नेचर। पोलर मतलब
some charge. Water is also polar in nature. ये भी सिखाया जाए कि वाटर कैसे पोलर हो गया. आज तक तो न्यूट्रल ही था. आयंस की वजह से आपको सिखाया गया कि न्यूट्रल था, अब बोल रहे हैं पोलर है. तो ध्यान ये रखना है लाइक डिसॉल्व्स लाइक. मतलब पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? सॉल्युबल. ठीक है. पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? सॉल्युबल. नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? सॉल्युबल. बट क्या पोलर नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा? नहीं होगा. ये मतलब है लाइक डिसॉल्व्स लाइक. वेरी इंपॉर्टेंट. पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही सब दिखेगा आपको, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. यहीं पर थोड़ा सा 2-3 लाइन लिख लेते हैं, हालांकि है नहीं यहाँ पर. लिख लेते हैं बट फिर भी आगे जब जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा. पोलर इन पोलर soluble. Non-polar in non-polar, again soluble. Polar in non-polar, insoluble. Non-polar in insoluble. तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो आप बचपन से पढ़ते आते हो. पेट्रोल, वाटर सॉल्युबल नहीं होता है ना बेटा, ऊपर पर तैरता रहता है. याद रखना. मतलब मान के चलो 99.9% केस में ये एप्लीकेबल होगा. केमिस्ट्री है, 100% क्या ही होता है इसमें, कुछ नहीं. कुछ ही जगह पर है ऑलवेज, बाकी सब जगह पर एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है. ठीक है. यहां तक कुछ पूछना आपको? तो अभी थोड़ी देर पहले आपको ये भारी भरकम चीज सिखाया गया. कहाँ गया? लैटिस एनर्जी क्या होता है? टॉपिक का नाम लिखिए बेटा. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, अगले साल भी क्लास 12 में है जब आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ेंगे. ठीक है. लैटिस एनर्जी. एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लैटिस. लैटिस के ब्रैकेट में लिखो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. Lattice energy depends upon charge. Number 2,
size of cation and anion. देखना ध्यान से, तुमने बेसिकली ये बनाया, ठीक है, और हमें क्या पता है ये जो NaCl होता है कैसे बना, दोनों के बीच में क्या लेकर आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक नई चीज जो क्लास 12 में सिखाई जाएगी और आपको बोर्स मॉडल में भी सिखाया गया होगा या लिखाया गया होगा कम से कम, electrostatic force of attraction is given by formula K Q1 Q2 by R square। फोर्स में लिखा गया होगा फोर्स, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब, जब Q1 और Q2 ज्यादा। समझ में आ रही चीज? तो अगर कैटायन प्लस वाला हो और कैटायन एक दूसरा कैटायन +2 वाला हो तो किसमें ज्यादा फोर्स, +2 वाले में। दिख रहा है फॉर्मूले में Q1 की जगह क्या रखोगे, +2E। सिमिलरली अनायन के केस में भी एक अनायन माइनस चार्ज वाला है, एक अनायन 3 माइनस चार्ज वाला है, तो किसमें ज्यादा, 3 माइनस वाला। ठीक, और ये साइज, कैटायनिक और आयनिक साइज कौन सा वाला लेते हैं हम, कौन सा रेडियस लेते हैं, अरे 3 रेडियस पढ़ाया था, कौन सा वाला रेडियस लेंगे, आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस जो होगा उसकी वजह से फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसका मतलब आपने बस यहां क्या लिखा, लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन चार्ज। कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। Therefore, as charge increases, force increases. Therefore, lattice energy will be, इसी को याद रखने के लिए lattice energy is proportional to charge on cation or anion। वेरी इंपॉर्टेंट, डब्बे में बंद करेंगे और रट लेंगे। कैसे आया, ऊपर लिखा हुआ है। सेकंड, as size increases, force of attraction decreases। Therefore, lattice energy will be less। रटने के लिए क्या होगा, lattice energy is proportional to 1 by size of ठीक है। अब ध्यान से देखना, बस ये याद करने के लिए हम लिख लेते हैं कि साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होता है, दूसरा वाले का
एक्चुअल चीज लिखी जा रही है। आंसर बेटा इसी से आएगा, आंसर हमेशा इसी से आएगा, बट आपको एक्चुअल चीज भी पता होनी चाहिए, क्या पता कभी अदर्शन रीजन में पूछ दे। एक्चुअल थिंग इज lattice energy is proportional to 1 upon interionic distance, which means ionic radius को कैसे लिखते हो, like this, r plus और r minus का radius divided by 2. This is your actual form of lattice energy. जैसे मान लो एक कटायन है और एक अनायन है, एक्चुअल में the answer is this. लैटिस में कैटायन और अनायन एक दूसरे से इस तरीके से टच्ड फॉर्म में होते हैं। This will be your radius for cation. This will be your radius for anion. And this force of attraction is basically dependent upon this factor, R plus plus of R minus. मतलब कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस का सम। बट इतना डिटेल में है नहीं। Sum of cationic and anionic radius. बस लिख के रख लो, कोई कभी अगर ज्यादा डीपली आपसे पूछते, you can write the answer. बट आंसर किधर से आएगा? L directly proportional to charge, L directly proportional to 1 upon size. ठीक है, सारा आंसर यहीं से आएगा, एक भी एक्सेप्शन नहीं होगा इसमें, ये ध्यान रखना, सारा आंसर इधर से ही आएगा। So, on the basis of these two concepts, और जो आपने पुरानी क्लासेस में सीख रखा है दोनों मिलाकर, can you compare the order of lattice energy for following elements? Question 1, sodium fluoride and magnesium fluoride, lattice energy कंपेयर करना। Done? So this is Na plus, this is Mg plus 2. तो चार्ज के हिसाब से, चार्ज के हिसाब से क्या आएगा? इसके लिए लैटिस एनर्जी विल बी मोर, चार्ज के हिसाब से, साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से बोलो, अरे पढ़ा है तुमने Na प्लस और मैग्नीशियम का साइज कंपेयर करना, प्लीज डू इट। अरे ये पुराने चैप्टर्स में पढ़ रखा आपने, Na प्लस और साइज कंपेयर करना।
ये कौन सा वाला है? अलोंग द पीरियड, है ना, सोडियम मैग्नीशियम एक ही पीरियड के, नहीं याद है? अलोंग द पीरियड व्हाट हैपेंस टू द साइज? इट डिक्रीजेस, साइज कम, लैटिस एनर्जी ज्यादा। वहां से भी सेम आंसर, आंसर क्या होगा? MgF2 का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NaF। ठीक है, अब यहां तो दोनों से सेम आंसर आ गया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों से उल्टा आंसर आए, है ना। दो फैक्टर्स आपको दे रखे हैं, एक फैक्टर से हो सकता है MgF2 ज्यादा है, दूसरे फैक्टर से कोई और चीज ज्यादा है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो याद ये रखना है, दिस फैक्टर इज डोमिनेंट। अगर ऐसा हुआ तो चार्ट से जो आंसर आया दैट इज योर, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, ऊपर पर जब ये लिखा है तो यहां पर लिखेंगे हम सब डोमिनेंट फैक्टर। कभी भी चार्ज और साइज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, विच विल प्रिवेल? चार्ज विल प्रिवेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो जब पहले से ही पता है कि चार्ज विल प्रिवेल, किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा? सीजियम क्लोराइड, सीजियम, सीजियम। पहले तो पता करो कहाँ है सीजियम। 1 2 13 14 15 16 17, ये सब तो याद करके दिखाया मैंने आपको। फटाक से दिमाग में वो चलना चाहिए और आना चाहिए सीजियम कहाँ है। सीजियम इसी के साथ है, सोडियम वाले ग्रुप में ही है, डाउन द ग्रुप। एंड वी नो दैट डाउन द ग्रुप, अच्छा चार्ज तो सेम हो गया, चार्ज अगर सेम है तो फिर चार्ज पर कंपैरिजन तो होगा नहीं, तो डाउन द ग्रुप, बोलो, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, लैटिस एनर्जी विल बी लेस। तो किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा? Na। NaCl का साइज Na प्लस का साइज कम। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पीछे पढ़ाई गई हैं, बिना उसके ये नहीं होगा। टाइम है ना, अभी और भी चीजें कंपैरिजन होगी, तो बस स्टार्टिंग पॉइंट है यार। पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो आपको बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो सब जो सिखाया है सब यूज होगा, तो वो सब याद होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी यार, सच बात है। MgO, NaCl, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चार्ज देखते खुश हो जाना है। MgO का लैटिस एनर्जी विल बी, FeO Fe2O3।
+2 -2 +3 और +2 +3, इसका ज्यादा होगा Fe2O3 का। आया ये आंसर? अच्छा, होमवर्क लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रेशन एनर्जी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अगली क्लास में करेंगे। तो मेमोराइज करिए, पढ़ाया गया। पहले 3 पेज एनसीईआरटी का रीड करिएगा। पहला 3 पेज मतलब इंट्रोडक्शन वाले पेज से, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये करना है। और रेडॉक्स वाला यार नीचे रखा हुआ है, कल ले लेना रेडॉक्स वाला, नीचे कौन जाएगा अब, ठीक है। रेडॉक्स वाला जो है डीटीएस नीचे रखा हुआ है प्रिंट होकर, ठीक है। आज का कोटा मेरा अभी तक का पूरा हो चुका है ऊपर नीचे करने का, तो कल ले ले, जा सकते हैं आप।